सो एज आई ऑलवेज से, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग अपने मन में बोलो सरस्वती मैया की जय। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वी डिस्कस दिस टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। We have already discussed this topic of quadratic equation up to a certain level. अब जो है आज के क्लास में हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ वी डू दिस, व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ वी डू दिस थिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। देखो, जब हम मैथमेटिक्स की बात करें, जहां तक एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न, सो इन मैथमेटिक्स algebraic expression is basically an expression that is made up of variables and constants, and these variables and constants are connected by the mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and division. For example, if I say 3x plus 5y. Now this is an algebraic expression because here we are being connected by, the terms 3x and 5y are connected by an are connected by an mathematical operation, that is plus. फिर अगर मैं बात करता हूँ 3x square minus 3x plus say 7y square. So this is also an algebraic expression. This is an algebraic expression in one variable. This is an algebraic expression in two variable. Variable is the term जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, and the numbers. First one में भी two variables. Yeah, हाँ, first में भी two variables है, and second also has two variables, and the numbers 3, -3, 7 etc. are called the constants because इनकी वैल्यू जो है ये चेंज नहीं होगी. So this is basically an algebraic expression. ये जो है एक algebraic expression हुआ. अब हम बात करते हैं कि डिग्री, किसी भी algebraic expression की अगर हम डिग्री की बात करें तो नॉर्मली हम लोग जो बात करेंगे वो हम algebraic expression in one variable की बात करते हैं. We always talk about an algebraic expression of one variable. The degree of an algebraic expression is basically the power of the highest power of the variable. अगर कोई algebraic expression x में लिखा हुआ है और अगर x की सबसे बड़ी पावर अगर से 10 है तो the degree of that expression will be how much? 10. We normally talk about this algebraic expression in one variable. हमारा जो आपका जो syllabus है, we will be dealing with only with the expression in one variable. So this was about algebraic expression. अब हम बात करते हैं कि what is a quadratic equation. What is a quadratic equation? तो सबसे पहले अगर हम quadratic expression की बात करें तो quadratic expression वो वाला expression हो जाएगा जिसकी डिग्री क्या होगी? Whose degree is 2. और अगर मैं उस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दूं जीरो से, if I equate my algebraic expression with zero, then it will become a quadratic equation. सिंपल सी बात है. अगर मैंने अपने algebraic expression को px, मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो जब इस तरीके से लिखा हुआ है तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. Okay, now if I'm equating this to 0, then this becomes my quadratic equation. ठीक है? This becomes my quadratic equation. So there is little difference between a quadratic expression and a quadratic equation. Quadratic expression वो हो गया जब मेरा expression मेरे पास सिर्फ और सिर्फ expression लिखा हो. Quadratic equation वो expression quadratic है when it is not equal to 0, and when it becomes equal to 0 then it becomes a quadratic equation. ठीक है? So अब quadratic equation के general form की बात करें तो the general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c. Here a cannot be equal to 0. अगर a इक्वल टू 0 हो गया बेटा तो उस केस में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली इट विल बिकम ए लीनियर इक्वेशन. इसीलिए वी ऑलवेज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ होगा ही.
वही मैं बोल रहा हूँ, इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पे भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी होगी, यू हैव टू मेंशन दिस दैट a इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको ये बात मेंशन करनी पड़ेगी दैट a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हो तो इन दैट केस देयर विल बी सम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होगा? अगर आपका a इक्वल टू जीरो हो गया तो इन दैट केस योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बिकम ए लीनियर इक्वेशन। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट यू विल फेस। सो you should keep it in mind that a cannot be equal to zero. B and C can be equal to zero, no problem about it. बी और सी हमारे जीरो के बराबर हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगर आगे बात करते हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So first of all, let us try to calculate how you will calculate the roots of the quadratic equation. तो रूट्स कैसे निकालेंगे सर? आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम होता है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड मतलब यहाँ पे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। कैसे बनाओगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अपन देखेंगे कैसे बनाएंगे, लेकिन हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद फिर देन वी विल ट्राई टू इक्वेट दिस विद सम वैल्यूज और फिर देखते हैं कैसे कैसे रूट्स आता है। सो मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखो भाई, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 4a ऑन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स मतलब राइट हैंड साइड तो जीरो है, तो यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाइड बाई 4a कोई मतलब बनने वाला है नहीं, इट इज गोइंग टू बी जीरो ओनली। सो माई एक्सप्रेशन विल बिकम 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या किया, मैंने इस 4ac को इक्वेशन के राइट लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे ले आया। बहुत अच्छी बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके पास जाऊंगा, मैं इसको पूछूंगा कि भाई क्या तुम परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हो? वो बोलेगा हाँ बन सकता हूँ, बनाओ तो सही। तो मैं बोलूंगा कैसे बनोगे भाई? तो ये मेरे को बोलेगा कि एक काम करो, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर ऐड कर दो। तो जब मैं बी स्क्वायर ऐड करूंगा बेटा, उस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। This expression will become of the form of x plus y whole square. So what I will write this as 2ax plus b whole square is equal to b square minus 4ac. अब आपको ये पता है बेटा कि x square is equal to 9, that gives me x is equal to plus minus 3। ये बात तो हमें पता है, ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं। तो now 2ax plus b whole square is equal to b square minus 4ac. So 2ax plus b will be equal to plus minus b square minus 4ac. So x will be equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मेरे पास दो रूट्स आए। कितने रूट्स आए? दो रूट्स आए। रूट्स क्या होता है? ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स जिसको यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो दिस इक्वेशन विल बिकम जीरो। सो नाउ आई एम गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ एक्स, और ये जो क्वांटिटी है ना बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। We call this quantity as discriminant. Many a times you will get a question in which you have to calculate the value of d और उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करनी होगी। that we will do at the later stage। बट इस क्वांटिटी को, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब भाई क्या है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट कैन हैव टू रूट्स,
और इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 रूट्स प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर a जो है इक्वल टू 0 नहीं है तो इसके 2 रूट्स हो सकते हैं। अब जो रूट्स हैं वो रियल और इमेजिनरी हो सकते हैं। कैसे सर? अब ये इमेजिनरी क्या आ गया सर? ये क्या नई नाटक, ये क्या नया नाटक आ गया? डेली डेली अलग अलग बताते रहते हो। देखो इमेजिनरी क्या होता है, अब सुनो। हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन किया था तो मैंने कहीं पे भी ये बात नहीं बोली थी ए बी और सी के बीच में ऐसा तो कहीं कोई रिलेशन की तो बात अपन ने की नहीं थी कि ए बड़ा होगा बी छोटा होगा सी बड़ा होगा, ऐसा तो कुछ हमने बात किया नहीं था। ये जो क्वांटिटी है दोस्त, ये जो क्वांटिटी है मेरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक सेकंड, हाँ ये पेज थोड़ा सा खो गया है। ये जो क्वांटिटी है दोस्त बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर इज दैट? ये जो क्वांटिटी है दोस्त बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट वाला, तो यहाँ पे इट्स वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 0 ऑल्सो, इट्स वैल्यू कैन बी लेस देन 0 ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अगर मैं इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो इट विल बी माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 into 4 into 1 which will be equal to 4 minus 16 which is equal to minus 12। अब ये क्या है सर? हमने तो कभी, और इसका जब मैं रूट निकालूंगा तो दिस विल बिकम एज -12। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? मैंने तो आज तक पढ़ा ही नहीं है, ना मैंने पढ़ाया है आपको कि जब रूट में -12 आ जाता है या जब रूट में कोई वैल्यू आ जाती है लेस देन 0 तो उसको क्या बोलते हैं? तो बेटा ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे कि द रूट्स आर इमेजिनरी, द रूट्स आर इमेजिनरी। और जिस केस में माई d इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0, greater than equal to 0, in that case I will have real roots। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हो गया इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट कब आएगा बेटा? जब d इज लेस देन 0। और एक पार्ट हो गया रियल रूट्स, रियल रूट्स कब आएंगे? व्हेन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं सर, कौन कौन सी कंडीशंस हैं देख लो भैया ध्यान से। एक कंडीशन आती है व्हेन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्या बोला मैंने? the roots are real and unequal। दोनों रूट्स होंगे अलग अलग होंगे, हमें नहीं पता, एक जैसे नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, हमें इतना पता है, अलग अलग होंगे और रियल होंगे। तो उस केस में कब होंगे सर? वो तब होंगे जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया था d दैट इज ग्रेटर देन 0। एक केस और आएगा भाई जब हमारे रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, रियल तो है ही ये, तो ये इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। ये कब होगा सर? when my discriminant is equal to 0। so basically we have 2 conditions। one condition is when my roots are real and unequal, that is the condition in which my discriminant is greater than 0। the other condition is when my roots are real and equal, दिस इज द कंडीशन व्हेन माय डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे हो गए 3 टाइप के रूट्स। ये केस कब आएगा? ये केस जब आएगा तब हम कहेंगे कि हमारे रूट्स आर इमेजिनरी। मतलब इमेजिनरी मतलब ज्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है कि ये क्या फैंसीफुल टर्म आ गया, इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इमेजिनरी इज समथिंग दैट इज नॉट एग्जिस्टेंट, that is not existent, it cannot be plotted on the Cartesian coordinate system, तो इट इज नॉन एग्जिस्टेंट। तो इसको हम लोग जो है इमेजिनरी बोलेंगे। इसके बारे में अपन को ज्यादा बात करके टाइम वेस्ट खराब करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना पता है कि इमेजिनरी होगा। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो बस इतना ही पूछा जाएगा कि इमेजिनरी रूट की कंडीशन बता दो या रियल रूट की कंडीशन बता दो। नॉर्मली आपसे रियल रूट की ही कंडीशन पूछी जाएगी, तो इमेजिनरी में ज्यादा पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो
अब हम बात करते हैं जो वही जो मैं इतनी देर से आपको बोल रहा था कि नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। सो नेचर ऑफ रूट्स जो है मेरे तीन टाइप के हो सकते हैं, रियल एंड अनइक्वल, real and equal, and imaginary and unequal. They both will depend upon, the three conditions will depend upon discriminant. What is this discriminant, sir? Discriminant is b square minus 4ac. नॉर्मली लोगों को कंफ्यूजन होता है, नॉर्मली लोग जो है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। नो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सो माय रूट्स आर, अब हम रूट्स को अल्फा और बीटा दो दो टर्म से डिनोट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बीटा इज दिस। एंड सो अब हम बात करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कंडीशंस क्या हो गई, जब मेरे रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, जब मेरे रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे उस केस में क्या होगा, दिस दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो, पहली कंडीशन। और हमारे जो दो रूट्स होंगे वो हो जाएंगे माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड माइनस बी माइनस square root b square minus 4ac by 2a. These will be my two roots which are given by alpha and beta. और जब हमारे रूट्स, अब देखो भाई एक कंडीशन यहाँ पे आती है, व्हेन a is not equal to 0 and b square minus 4ac is a perfect square, then in that case my roots are rational and distinct. ठीक है, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट की कंडीशन एक होती है व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट की कंडीशन क्या हो जाएगी सर, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सीधी सी बात है यार, देखो इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। मान लो आपके पास इस तरीके से आता है -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 23 डिवाइडेड बाई 4। नाउ इन दिस केस माय डियर फ्रेंड, व्हाट यू विल से, in this case what you are going to say, that my roots are, that my roots are irrational and distinct। लेकिन अगर इस तरीके से आता है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाई से 4, in this case what you will say, that my roots are real and rational and distinct। रियल तो है ही, लेकिन रैशनल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है माइनस बी प्लस माइनस एंड स्क्वायर रूट डी बाई 2a, ये क्वांटिटी रैशनल होगी या इरेशनल होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा भाई, ये सिर्फ और सिर्फ इस स्क्वायर रूट ऑफ डी पे डिपेंड करेगा। इफ स्क्वायर रूट ऑफ डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इन दैट केस माय दिस क्वांटिटी विल बी ए रैशनल नंबर। इफ इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन इट विल नॉट बी ए रैशनल नंबर। सिंपल सिंपल सी बात है, बेकार में कंफ्यूज होते हो आप लोग, तो सिंपल सी कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा सोचने का नहीं, ज्यादा दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत सिंपल चीजें हैं बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत सिंपल चीजें हैं, बस थोड़ा सा सोच समझ के खेलो, बहुत सिंपल चीजें हैं। अब देखो रियल एंड इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन थी भाई, ये जो मेरा d है अगर वो 0 हो जाए तो मेरा अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई 2a, क्योंकि हमारा जो रूट होता था वो क्या होता था भाई, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a ना। अब मैं किसी तरीके से अगर इसे 0 कर दूं तो मेरे रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, वही तो काम किया है इन्होंने। अब third condition, when b square minus 4ac is less than 0, in that case what will happen my dear friend, in that case the roots will be imaginary and distinct। ठीक है, imaginary roots, एक और बात बता देता हूँ शायद कभी यूज पड़ जाए, इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, या इरेशनल रूट्स, यस इरेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। कैसे सर, क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा, मेरे हमारे मगज में ना थी, नहीं घुसानू, आप क्या बोल रहे हो, मेरे दिमाग मेरे मगज में नहीं घुस रहा है सर। मैंने ये बोला बेटा, मैंने ये बोला, लेट मी ट्राई टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज करो या हियर है, सपोज करो हमारे पास जो रूट है -3 प्लस माइनस से स्क्वायर रूट 23,
ठीक है, और 2a की वैल्यू 1 है, फाइन, किसी भी तरीके से इसकी वैल्यू 1 है। तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक रूट आपका क्या हो गया -3 प्लस √23, और दूसरा रूट आपका क्या हो गया -3 माइनस √23, -3 माइनस √23। इसका मतलब और ये दोनों नंबर्स को देखो, ये दोनों नंबर्स क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इसका मतलब जानते हो दया क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कहीं इक्वेशन दी हुई है और आपको सबसे पहली चीज अगर आपको ये दिया हुआ है कि वन ऑफ द रूट ऑफ माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे 3 प्लस √8, तो बिना सोचे समझे आपको, बिना सोचे समझे, बिना एक मिनट वेस्ट किया आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि द अदर रूट विल बी 3 माइनस √8 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हियर इट विल बी 1। कैसे आया सर 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, तो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी हियर 1 एंड द सम ऑफ द रूट्स, एंड द सम ऑफ द रूट्स, एक मिनट बेटा, लेट मी फिनिश देन आई लास्ट, एंड द सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू 6। तो ये बात आपको बिना देखे, जब जैसे ही आपने ये देखा आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। क्यों होता है ये, दैट आई हैव ऑलवेज ऑलरेडी गिवन यू द एक्सप्लेनेशन। क्यों होता है ये, डेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो ये बात आपको देखते ही समझ में आनी चाहिए कि इरेशनल रूट्स जो होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, एक बात बताता हूँ, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, उस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट है 3 प्लस √8, one of the root is 3 plus √8, you have to find the other two roots, और आपको एक दो कंडीशन दे देगा, ठीक है। तो बेटा इस केस में आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज घुसनी चाहिए वो ये घुसनी चाहिए कि अच्छा एक रूट 3 प्लस √8 है, इसका मतलब जो दूसरा रूट होगा वो पक्का 3 माइनस √8 होगा। इरेशनल रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। irrational roots always exist in pair. बेटा can you please little louder, I'm not getting your voice. सर उसमें तो क्यूबिक इक्वेशन हो गए तो उसमें ये रूल लगेगा। हाँ लगेगा, उसमें भी लगेगा, क्यूबिक में भी लगेगा, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ठीक है। चलो अब कुछ छोटे छोटे रिमार्क्स हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है द रूट्स आर इरेशनल, ये गलत बात है, इन्होंने सारी बातें लिख दी जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। द रूट्स आर इरेशनल, द इरेशनल रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स, दैट इज 2 प्लस √3, अगर एक रूट है तो दूसरा रूट जो होगा वो 2 माइनस √3 ही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें बात नहीं करनी है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक एनीथिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़े ग्राफ की बात, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है और अगर हम ग्राफ की बात ना करें तो भैया दिस इज नॉट डन, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो भाई ये जो एक ग्राफ है ये एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिनोट करता है जिसका सिर्फ एक ही रूट है एंड जिसके दोनों रूट्स इक्वल हैं। This represents a quadratic equation whose both the roots are equal and the roots are 0. This is representing a quadratic equation whose both the roots are equal and the roots are 0. Next, this is representing a quadratic equation whose two roots are 4 and 5, which has real and distinct root and the roots are 4 and 5. Due to I didn't had much of the space, so इसको मैं दिखा नहीं पाया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 4 and 5 पे this equation is touching the x-axis and its value is 0. Its value is 0, so I can say that this x square minus 9x, basically x square minus 9x plus 20 has two roots, one root is 4 and the other root is 5. Next आगे हम बात करते हैं। So now okay, here there is a problem, यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं होगी। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो बेटा तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि इट इज नॉट टचिंग एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ये जो है एक्स एक्सिस, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो।
सर उसने बोला मतलब नो सर, ये टच नहीं हो रही। Okay, okay. It is not touching the x-axis at नो any point. सोल्यूशन शायद से। हाँ, so if it is not touching the x-axis at any point, इसका मतलब क्या हुआ? It नो has no सोल्यूशन ओनली। solution. खत्म. ज्यादा नो रिसर्च, सोल्यूशन। वही तो बोल रहा हूँ नो यार। सोल्यूशन। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि it has no सोल्यूशन है solution. ही नहीं, कटिंग नहीं कर रहा तो सोल्यूशन कैसे पैदा होगा? अरे भाई तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि it has no solution. It has no solution, or you can say that it has no real solution. It has no real solution or it has no solution. ठीक है, इसका जो d आएगा ना, इस इक्वेशन का जो d आएगा, that will be less than 0. अनफॉर्चुनेटली मैं वो इक्वेशन लिखना भूल गया। इसका जो d आएगा that will be less than 0. ठीक है, चलो नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो जीरोस हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ये जो जीरोस हैं इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है सर? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है कि इट इज अ पॉइंट वेयर द ग्राफ इज टचिंग द एक्स एक्सिस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है कि इट इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ इज टचिंग द एक्स एक्सिस। और हमारा जो ग्राफ होता है that can be a upward parabola and it can be a downward parabola। तो अच्छा, इस शेप को जो है, ये जो यू टाइप की शेप है, इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, ये पैराबोला आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे तो इसलिए आई हैव नॉट टोल्ड यू मच अबाउट इट। सो दिस इज ए पैराबोला। सो इट विल हैव either it can be upward parabola or it can be downward parabola. Now whether it is an upward parabola or it is a downward parabola, that depends upon the value of a। अगर मेरा इक्वेशन इस तरीके से है x square minus 9x plus 20, so it will be an upward parabola। but if my equation is like this, minus x square plus 9x minus 20, इसका मतलब जानते हो दया क्या हुआ? दिस इज ए डाउनवर्ड पैराबोला। बस खत्म, और कुछ नहीं है। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि इट कैन बी अपवर्ड पैराबोला, इट कैन बी डाउनवर्ड पैराबोला आल्सो। नेक्स्ट इज द पॉइंट वेयर इट इज टचिंग द एक्स एक्सिस। द पॉइंट वेयर इट इज टचिंग द एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। अगर हम बोलते हैं कि my curve is touching the x-axis if alpha and beta are the two roots of my equation, that means at this point alpha comma 0 and at beta comma 0, my equation will have the value equal to 0. My equation will have the value equal to 0. So this is about this was about the nature of roots। अब इस केस में एक ऐसा भी केस आ सकता है सर, जब हम इमेजिनरी रूट की हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो केस है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए केस वेयर बोथ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये जो केस है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए केस वेयर द रूट्स आर unequal, that is where the roots are imaginary, that means my b square minus 4ac will be less than 0। square root of b square minus 4ac will be less than 0। और आप ऐसा कह सकते हो कि 4ac will be greater than b square। this also you can say because you have already learnt inequality। so you can also say that 4ac is greater than b square। अगर आपके पास कहीं पे ऐसे ही, अब आपको हर जगह ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि b स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करो। पहले एक बार 4ac निकाल लो और एक बार b स्क्वायर, अब भाई किसी नंबर b स्क्वायर निकाल लो। ये सारी चीजें आप मन में कैलकुलेट कर सकते हो। 4ac निकाल लिया, b स्क्वायर निकाल लिया, दोनों को कंपेयर कर लो कौन सा बड़ा है। अगर 4ac बड़ा है, इसका मतलब जो आपका रूट होगा वो इमेजिनरी होगा। खत्म कहानी, आगे बढ़ो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर b स्क्वायर जो है वो 4ac से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब आपके रूट जो है रियल एंड अनइक्वल होंगे। खत्म, बस, डोंट थिंक मच। तो इस तरीके से यू कैन मिनिमाइज योर टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन सॉल्व करने में जो टाइम होता है वो आप इस तरीके से थोड़े बहुत मेंटल ऑपरेशंस करने से आप इन चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, the next thing that we are going to talk here is very interesting thing, that is, yes, this is the same but unfortunately we have to read it and yeah, अभी क्लास में मैक्सिमम बच्चे आ चुके हैं। सो एक अनाउंसमेंट है
the important announcement that I want to make here is, अब हम बात करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेटा मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं। नॉर्मली जब आप बुक्स देखोगे तो वो आपको बोल देंगे कि डिफरेंशिएट कर दो और निकाल लो, बट वी हैव नॉट लर्न डिफरेंशिएशन, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस डिफरेंशिएशन हियर। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको एनालिटिकली सॉल्व करेंगे और उसके बाद we will try to reach at some of the conclusions. सर हाँ बोलिए। सर फिजिक्स में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। कोई बात हाँ नहीं, सर, बट किया डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बट डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में अभी नहीं पढ़ा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू डिफरेंशिएशन हियर। ठीक है, चलो सर अब लेकिन यहाँ पढ़ा तो ठीक है आपने पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ आपको डिफरेंशिएशन नहीं बता सकता। दैट इज नॉट इन माय स्कोप। आई डू हैव सम लिमिटेशंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय लिमिटेशंस आल्सो। ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, अच्छी बात है। कभी अगर कोई क्वेश्चन आता है मैक्सिमम मिनिमा का, तो हम डायरेक्ट में डिफरेंशिएशन करके कर सकते हैं। यू कैन डू इट लाइक सर दैट। अगर उससे इजी है तो सर आप वो भी एक बार समझा दोगे डिफरेंशिएशन से कैसे? क्या बोल रहे हो? सर अगर डिफरेंशिएशन से इजी है मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, सर आप एक बार समझा दोगे कि वो कैसे निकालते हैं? नहीं नहीं बेटा, आई हैव सम लिमिटेशंस, आई हैव टू स्टिक टू दैट ओनली। आई एम सॉरी, आई कांट डू दैट, आई कांट डू दैट। ठीक है, चलो अभी हमने जो है यहाँ पे जो चीजें पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे कि हम ये मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालेंगे। देखो हमारा जो कर्व होता है, अगर if I am talking about an upward parabola, so it will be like this. So this term will be the minima. ये जो होगा ये मिनिमा होगा। तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं, तो निकल गया मेरा मिनिमा, निकल गया। क्या होगा, या अगर मेरा कोई डाउनवर्ड पैराबोला होता है, सो दिस विल बी द मैक्सिमा। तो सबसे पहले हमें ये समझने की बात होती है कि इफ a is greater than 0, in that case I will only talk about minima, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैक्सिमा नहीं होता है। एंड इफ a is less than 0, in that case I will talk about the maxima। ठीक है, पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो हमने मान लिया कि हमारी जो इक्वेशन है विच इज इक्वल टू y, लेट y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड देन आई विल हैव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमें ये पता है कि x इज रियल, अगर x रियल है दैट मींस द वैल्यू ऑफ d विल बी क्या? सर ये टू वेरिएबल हुआ? टू वेरिएबल नहीं हुआ बेटा, इसको जस्ट मैंने y से इक्वेट किया है, बिकॉज फाइनली आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, जहां पे हमारा जो इक्वेशन है वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, आई हैव टू कैलकुलेट दैट। सो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 4ay, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। सो I will have y will be greater than equal to 4ac minus b square divided by 4a। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, लेट मी सी। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है x is greater than equal to 5, इसका मतलब x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सर 5 होगी। अगर कहीं लिखा हुआ है x is greater than equal to 5, that means x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 5 होगी, 5 या 5 से बड़ा होगा। So here I got that y is greater than equal to 4ac minus b square divided by 4a। इसका मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4ac minus b square upon 4a होगा। ठीक है, ये बेटा ये टू वेरिएबल में नहीं हुआ, हम मिनिमा निकाल रहे थे, तो मिनिमा कोई वैल्यू होगी ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। वैल्यू y है सर। हाँ,
इसका इसकी कोई मिनिमम वैल्यू होगी, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग टिल आई एम नॉट नोइंग व्हाट विल बी दैट वैल्यू, आई हैव अज्यूम्ड दैट वैल्यू टू बी इक्वल टू y, और फाइनली उस y की जो वैल्यू आई है वो आई है 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम जानते हैं, आई नो दिस इज नथिंग बट माइनस डी। ये जो था ये क्या था, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने एक फैंसीफुल टर्म दिया, नाम दिया था, क्या दिया था, डी बोला था ना। सो दिस इज 4ac माइनस बी स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, माइनस डी। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन algebraic of a quadratic equation in which d is greater than, in which a is greater than 0 is minus d upon 4a. The minimum value of a quadratic equation in which in which a is greater than equal to 0 is minus d upon 4a. अब बात ये आती है सर कि ये मिनिमम वैल्यू आएगी किस x पे, ये जो मिनिमम वैल्यू तो आई y की आई, ये y की वैल्यू किसी करस्पॉन्डिंग x पे आएगी ना। ये है मान लो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो आपने बोल दिया सर कि दिस कोऑर्डिनेट इज, अब इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक तो आपने बोल दिया सर कि इट इज माइनस डी बाई 4a, बट यहाँ पे इसका कुछ x कोऑर्डिनेट भी तो होना चाहिए भाई, एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आए हैं, तो आपने y कोऑर्डिनेट तो बता दिया, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट, द x कोऑर्डिनेट इज माइनस बी अपॉन 2a। वो कैसे निकाला सर, x की वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a पुट कर दिया, और उसके बाद x की वैल्यू मेरे पास माइनस बी अपॉन 2a आ गई। सो फॉर द केस ऑफ a is greater than 0, the minimum value will be minus d upon 4a, and this minimum value is occurring at x equal to minus d upon 2a। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है सर कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, वेरी गुड, थैंक यू, लेकिन व्हाट अबाउट इफ a is less than 0? a is less than 0 में a is less than 0 को पहले एनालाइज कर लेते हैं भाई, क्या है ये, दिस इज a is less than 0। a is less than 0 में सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा कि वी विल ओनली टॉक अबाउट द मैक्सिमा। ठीक, हम सिर्फ मैक्सिमा की बात करेंगे, क्योंकि जो भी वैल्यूज आएगी ना इससे कम ही आएगी। सो द मैक्सिमा हियर विल बी it will occur at minus b upon 2a, and its value will be minus d upon 4a. I think this method is easier than the differentiation, क्योंकि अभी आपने डिफरेंशिएशन ज्यादा पढ़ा नहीं है, आपको ठीक से याद नहीं है, वहां पे गलती करने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी उतना ही पढ़ो जितना रिक्वायर्ड है। So this method is I guess easier than differentiation, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, बस खत्म, और कुछ नहीं याद रखना है। चलो आगे बढ़े। अब methods of solving quadratic equation, we have already done this, so I will be just be going by this. So method of solving quadratic equation में सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, फैक्टराइजेशन मेथड है, तो आपको जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपको फैक्टराइज करना। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। सपोज करो आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको आपको सॉल्व करना है बेटा, तो आपको क्या करना है, आपको इस 6 को सच इस तरीके से आपको ब्रेक करना है, सच दैट द टू पार्ट्स इन विच यू आर ब्रेकिंग दिस 6, उसका जो सम आए वो -5 आए, और जो प्रोडक्ट आए वो 6 आए। तो आप कैसे ब्रेक करोगे, अब आप 6 को 6 into 1 लिख सकते हो, 5 आप 6 को 2 into 3 लिख सकते हो। 5 को ब्रेक नहीं करना, 5 को ब्रेक कर लो यार, वैसे पकड़ लो कान, आपको इस -5 को इस तरीके से ब्रेक करना है, आपको इस -5 को इस तरीके से ब्रेक करना है, सच दैट the two parts when multiplied together will give the result as +6. The two parts when added together will give the result as +6. So it will be very easily, you can say that it will be x square minus 3x minus 2x plus 6. So it will be x into x minus 3
minus 2 into x minus 3, and this will obviously this will be equal to 0. So x minus 2 multiplied by x minus 3 will be equal to 0. X will be equal to 2, 3. ठीक है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो 2, 3 आएंगे. ठीक है, so this is how you are supposed to solve the quadratic equation by factorization method. एक और मेथड होता है completion of square method, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था ये वाला. तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड में सर आपको क्या करना होता है कि आपके पास अगर सबसे पहले अगर मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 1 करना है. ये बात हमेशा याद रखना बेटा कि अगर आपको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से करना है तो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. अब क्या करो भाई, यहाँ पे स्क्वायर बना दो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो. सो फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट एज x विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. अब ये 4a रूट में 4a स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट के साइन के बाहर निकलेगा तो 2a बन जाएगा ना भाई, इसीलिए छोड़ दिया इसको. नेक्स्ट इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब भाई x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a. एंड यहाँ पे वही चीजें हैं, रियल हो अनइक्वल हो, ये चीजें थोड़ा सा देख लेना. कई बार क्या होता है आपसे कंडीशंस पूछी जाती हैं, व्हाट विल बी द कंडीशन इन विच द रूट विल बी रियल, व्हाट विल बी द कंडीशन इन विच द रूट विल बी अनइक्वल. इस टाइप की चीजें आपसे पूछी जाती हैं. तो जस्ट सी द कंडीशन एंड कंडीशन देखो, आगे बढ़ो, हो गया सवाल खत्म. अब भाई अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसा हमने लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशंस पढ़ी थी, सेम एप्लीकेशंस हमें यहाँ पे पढ़नी है. आपको आपके पास सिचुएशन दी होगी, आपको सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशंस फॉर्म करनी होगी. उस इक्वेशन को सॉल्व करो. इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 रूट्स आएंगे. अब उन दोनों रूट्स में बेटा एक बात ध्यान रखना कि द रूट्स दैट यू आर गेटिंग इन दोज रूट्स, वन वेल हो सकता है ऐसी सिचुएशन आए जहां पे आपको एक रूट को निग्लेक्ट करना पड़े. इसलिए निग्लेक्ट करना पड़े, सपोज करो कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि द एरिया ऑफ ए फील्ड इज दिस एंड द लेंथ इज दिस एंड द ब्रेड्थ इज दिस. अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई एंड सपोज करो यू आर गेटिंग लेंथ एज 2 and -3. तो भैया कौन सा आंसर लोगे, 2 वाला लोगे कि -3 वाला लोगे कि दोनों वाला लोगे? 2 वाला ही लोगे ना, because length cannot be negative. because length cannot be negative. So you are not going to, अब वहां पे इतना दिमाग मत लगाना कि अरे यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स आ रहे हैं, किसको निग्लेक्ट करूं. सिंपल कॉमन सेंस यूज करो. मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अप्लाइंग योर कॉमन सेंस. जो दिमाग आपको भगवान ने दिया है, उस दिमाग को जो आप इतने सालों से डेवलप कर रहे हो, धीरे धीरे थोड़ा डेली, उस दिमाग को अप्लाई करो, बस खत्म. मैथमेटिक्स इज नथिंग बिकॉज द रियल मैथमेटिक्स. बोलिए सर, हम ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे ना कि जिसमें दोनों पॉजिटिव. अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये मैं नहीं बोल सकता ना बेटा, वो तो केस स्पेसिफिक चीजें होंगी. वहां पे देखना पड़ेगा कि किसको निग्लेक्ट कर सकते हो, किसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, वो तो केस स्पेसिफिक होगा, वो तो मैं नहीं बता सकता अभी, सॉरी. ठीक है, चलो अब एक जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं. द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 5. दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी. द थ्योरी हैज बीन कंप्लीटेड, चूंकि ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए द थ्योरी हैज बीन कंप्लीटेड लिटिल फास्टर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी. अब आपका टास्क है क्वेश्चंस करना. क्वेश्चंस कीजिए, जो प्रॉब्लम आता है उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ. If the area of the floor of the hall is 84 meters square, what is the length and the breadth? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई. ब्रेड्थ को b मान लो तो लेंथ विल बी इक्वल टू b plus 5. So now what you have to do is b plus 5 multiplied by b is equal to 84. अब कैसे करें सर, समझ में नहीं आ रहा. क्वाड्रेटिक बना लो यार, सिंपल सा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्वाड्रेटिक बना लो. So b square
plus 5b minus 84 will be equal to 0. अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करना है तो करो सॉल्व. So now this will be 2, 2, 21 और it will be 2, 2, 7, 3. ठीक है, 2, 2, 7, 3. अब आपको इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि such that the sum is 5. चलो जल्दी बताओ आंसर. What will be the breadth? 7 or 12. 7 and 12. Sure? Obviously is correct. So now see, I can write Sir, 84 as factorization कर दीजिए. I can write 84 as product of 12 and 7. ठीक है. अब मान लो एक कंडीशन आती है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि इसको मैं कैसे ब्रेक करूं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अब तब मैं क्या विल आई बी एबल टू डू द क्वेश्चन? यस आई विल बी. कैसे सर? b विल बी इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 84 into 4. 84 into 4 will be equal to 320 plus 16. 320 plus 16, which is equal to 336. Now this will be divided by 2. This will be equal to -5 plus minus root of 361 divided by 2. अब बेटा या तो नंबर क्रंचिंग करके जल्दी से फैक्टराइज कर लो, या स्क्वायर रूट, कुछ तो स्क्वायर रूट याद करोगे ना. ये भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सो दिस विल बी -5 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2. तो एक वैल्यू आपकी आती है 7 और दूसरी वैल्यू आती है -12. अब बेटा 7 को मत कर, -12 को मत कंसीडर करो ना यार, इतना तो रहम कर दो. So the length will be equal to, so the breadth will be equal to 7, length will be equal to 12. क्वेश्चन खत्म, मार्क्स मिल गए, आगे बढ़ो. यही तो करना था क्वेश्चन में. The next question is, this question I am giving you as homework. Try करना, just take the screenshot of this question quickly. Because I have one more question which is very important. Just take the screenshot of this question. This is just a very simple question. यहाँ पे आपको चीजों को जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको करते जाना है. इक्वेशन बना लेंगे ना तो इक्वेशन बना लो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. टोटल नंबर ऑफ स्वाइन्स को आप x मान लो. तो टोटल प्लेइंग ऑन द शोर पे कितनी प्ले कर रही हैं? 7/2 times root x. On the shore of that, the remaining the two remaining ones are playing in deep water. So x will be equal to 7/2 root x plus 2. अब इसको कैसे सॉल्व करें सर? रूट x को y मान लो, तो y square will be equal to 7/2y plus 2. So 2y square minus 7y minus 4 will be equal to 0. Solve it, get the answer, move ahead, खत्म. लेकिन एक बात याद रखना, ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ये y की वैल्यू आ रही है. आपको ये जो आपने कैलकुलेट किया है ये आपके पास y की वैल्यू है. आपको फाइनली x की वैल्यू निकालनी थी. ठीक है, आपको फाइनली x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो y की वैल्यू आएगी उसको आपको स्क्वायर करना पड़ेगा. दैट विल बी इक्वल टू x. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी वेयर यू कैन मेक मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन में सर? व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज सेइंग if the graph of y equal to x minus a multiplied by x minus b is like this, then you have to tell what will be the graph of y equal to x minus a multiplied by x minus b minus 2. अब देखो भैया, चार ऑप्शन दे दिया, अब आपको बताना है कैसे होगा ग्राफ. So first of all you should realize here कि what the question is trying to say. इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे it will be x square minus a plus b x plus ab. यहाँ sum of roots is coming out to be a plus b and product is coming out to be a into b. ठीक है, इस इक्वेशन की अगर आप बात करें तो it will be x square minus a plus b into x plus ab minus 2. So here the sum is still equal to a plus b, but the product is a into b minus 2.
अब ऐसी कंडीशन जहां पे दो नंबर्स, ऐसी कंडीशन जहां पे दो नंबर्स जिनका सम, जिनका जो सम है, जिनका जो सम है वो still it is the same but the product has decreased, in that case what will happen, the numbers will decrease. In that case what will happen, the numbers will, the number, एक नंबर इंक्रीज करेगा और दूसरा नंबर थोड़ा सा डिक्रीज करेगा. So the graph of this equation will be this one. The graph of this equation will be this one. आपको इस क्वेश्चन में आप इसको इसी तरीके से आप सोच सकते हो कि दो नंबर्स, एक केस में मान लो उनका सम जो है वो इस तरीके से है, ठीक है. अब आपने इन नंबर्स को कुछ इस तरीके से ऑल्टर किया कि द सम इज स्टिल द सेम but the product has finally decreased by 2 or by 3 or by anything. That can only happen when you are increasing one number by 2, when you are increasing one number by x and you are decreasing one number by same x. In that case only the sum will remain the same and the product will change, and the product will change. This is possible. That is why, that is what I am explaining my dear friend, कि एक नंबर जो है आपका इंक्रीज होगा और दूसरा नंबर आपका डिक्रीज होगा. यहां से ये वाला जो नंबर है ये इंक्रीज हो रहा है. देखो दो नंबर्स हैं जिनका सम, मान लो सपोज करो देयर आर, आई हैव टेकन टू नंबर्स से 7 and 3. Okay, the product of the two numbers is 21. In another case what I have done, I have decreased the number 7 minus 2 और इसको मैंने इंक्रीज कर दिया 3 plus 2. Here the product is still the same, I mean the sum is still the same, which is equal to 10, but the product has decreased. Product कितना हो गया, 21 minus 6 plus 14 minus 4. So the product has decreased. ठीक है. So this is what you have to understand here. Although here the product is not decreasing, so you have to take some other number, but what you will realize here that the if you will take different cases, in option number B, in option number B 1 is increasing. No, here also 1 is increasing and 1 is decreasing. See, A is increasing, B is increasing and A is decreasing. But यहाँ पे B is decreasing and A is increasing. Okay, fine. Okay, fine. I got your point. So what we will do is, I will just leave this question here. आप लोग सोचो, थोड़ा सा मैं भी सोचता हूँ. Perhaps the answer that I am having, maybe that answer is wrong. So I'm leaving this question here. नहीं आप सर, लोग A ही है आंसर, तो इसको थोड़ा सा सोचो कि why that will be the answer. Then we will discuss it in the next turn. We will discuss it in the next turn. हाँ बोलिए बोलिए. You can also do it by that alpha plus beta is equals to minus b by a. So alpha plus beta will be always the same, and alpha into beta will change because it is c by a and c is different in AB both the minus 2. cases. हाँ, C is different in So- C is different in both the cases. ठीक है. नहीं, but in that case Yes. there are मेरी two लास्ट क्वेश्चन है यार. there are two possibilities possible. Now option number A and option number B. Why option number A cannot? Why option number B cannot be the answer? Why option number B cannot be the answer? This is what the question is. So I'm leaving this question to you because I think both the options can be the answer. I'm leaving this question to you because both the options can be the answer. So try to think this. Thoda sa aur socho. We'll start our discussion in the next class because the logic that I gave, according to that logic, both the options can be the answer. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा और सोचो. We will discuss it in the next turn. We'll start it with here only. So I'm stopping the discussion here.